Gaganpreet Kaur ji, you are there? गगनप्रीत कौर जी आप हैं? Yes, sir. प्लीज Sir, कैमरा ऑन कर Inderpreet, लीजिए. sir. It's actually. बाहर हैं क्या? कैमरा ऑन कर पाएंगे? Sir, please give me some time. ठीक है. अभी रेडी कौन है जिस? हाँ चलो डॉली तुम्हारा कैमरा ऑन है. What you want me to do? बताता हूँ ना. डांस तो डेफिनेटली नहीं करना है. ओके. You are sitting like your top 10 clients are sitting in front of you. Okay? Yeah. Whatever business you are doing, whatever, anything. Today, you have to introduce yourself as numerologist to them. As a famous numerologist, आप उनको introduce कराओगे and you have to tell them about numerology. So this is today's exercise. ये कौन है? बैकग्राउंड में मेरी बेटी भी बहुत बोलेगी. हाँ बिल्कुल. आप बिंदास बोल दो. अभी क्रिसमस के मूड में होगी वहाँ यूके में. हाँ. तो आपको बोलना है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी लैंग्वेज है. Condition is that you have your top 10 clients and you have to introduce yourself as a numerologist. For example, consider कि आप और किसी बिजनेस के आपके क्लाइंट है, अब आपको ये भी बताना है कि मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ, तो न्यूमरोलॉजी कैसे मदद करेगी and how exactly will they benefit from it. So this is your task. और सबके नंबर आने वाले हैं आज. Yes please. 3 मिनट है आपके पास बोलने के लिए. Okay. Hello everyone. I'm numerologist Dolly Naik. So numerology is all about numbers. So it's basically is a number science. So every numbers is, whenever we see that every number says that it is assigned for one particular planet. So in day-to-day life, always we are around with the numbers. So whenever we see our house numbers or our own birth date, everywhere number reflects. चलने दो. So what else? Okay, so for example, if I say like number one person, if somebody's date of birth is number one, comes in number 1, 19 or 28, those numbers are, when you come in a total of that, that is like rules by sun. So those people are very leadership quality, they hold leadership quality. They are very bright. They always very enthusiastic towards whatever they do. And similar with the every planet, like if I, for example, if somebody is born under the number 2, those are very emotional people. Those are very much loving and very much family oriented person. Those are. So like this, every number says like every planet. So it's not only about their personality trait, it is like about their day-to-day life incidents also. Whenever we come across, whenever you do any particular event, when you just go and check back whatever event you had, that also revolves around the numbers what you are holding. Like for example, if you are holding your number 4, so your events will take place either on 4, sometimes some events somewhere like your house number, unknowingly only, it is like always it goes around your particular number. So always I feel that everybody should know that what is their numbers, and that helps them. And sometimes whenever we are talking about numbers, not always we see that always the lucky number or unlucky number. To know about your own planet and why you behave this way, and what are the pros and cons of your number, if you know that number, then you can handle that trait very nicely. And even you are handling the cons of those numbers. Sometimes every numbers comes with some good or bad. So whenever it is like, if you know your unlucky number, so that way you can help yourself to not do on particular some important task on that day.
So I feel that numerology in day-to-day life, everybody should come across their own personal numbers and they should get help of some numerologist, and so that they can identify their own numbers, and unknowingly also they can check on their own numbers to do some means not to avoid some task whatever is there on their hand. They can just do know about their own numbers and they can help themselves with that, so that numerologists can help them to identify their personal numbers and their even anti numbers. Perfect. So that's Okay. all for me. Good. Good effort. Absolutely good. अब जो है अगला नंबर आएगा, and again I am repeating the question, again I am repeating the task. You have to present yourself as a numerologist. No matter Dolly did perfectly well, you have to present yourself as a numerologist, assuming that you have your top 10 clients already sitting in front of you, and you have to tell them the importance of numerology, that how numerology can be used in day-to-day life. ठीक है. Now अभी हाथ उठाया था रचना मैडम ने. So रचना मैडम है आप? Yes, sir, I'm there. I'm putting you on spotlight. So your task is that you have to tell people, your top 10 clients, that how numerology can help them and how you can help them. Okay, right. So I'll start सब लोग with तैयार हो अपने अपने नंबर के लिए. okay. So I'll start with this. Like I'll ask them some questions. नहीं, आप Like start करो. Assume that we all are your clients. okay. Go ahead. So my first question to all of you is that कि are you born on a simple day, or there is a particular day on which you are born, and how you can define the day or the time you are born. देन आप किस घर में रहते हैं, अगर आप किसी को एड्रेस अपना बताएंगे तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे. आपको अगर टाइम देखना है तो आप कैसे उसे डिफाइन करेंगे. एंड आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर या कॉन्टेक्ट डिटेल्स किसी को देने हैं तो आप कैसे डिफाइन करेंगे. सो एवरी आंसर विल कम एज नंबर्स. तो अगर हर चीज नंबर से ही होती है तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी लाइफ में नंबर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. आप हर एक को उसके फोन नंबर से जानते हैं. देन आपको उसके हाउस नंबर पे जाना होता है. आप किसी को भी कांटेक्ट करना होता है तो एड्रेस में हाउस नंबर होगा या उसका फोन नंबर होगा. तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ नंबर्स इन आवर लाइफ. ऐसे ही जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वी ऑल्सो गेट अ नंबर एज अ पेशेंट. तो वहां पे भी नंबर. आप स्कूल में जाएंगे रोल नंबर. So everywhere we are denoted as numbers. So there's very important role of numbers in our life, and a numerologist can help you out to know about yourself with those numbers. Like आपका date of birth क्या है, आपका name number भी calculate किया जाता है, which is very important to know about your personality. आपके जो डेली आपकी लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं, लाइक मैरिज, आपके बच्चे का बर्थ, या आपके लाइफ पार्टनर का रोल आपकी लाइफ में क्या है, आपकी खुद की पर्सनालिटी, हाउ यू बिहेव विद अदर्स, आपके जो भी मूड स्विंग्स हैं या जो भी आपके मेंटल इश्यूज आते हैं, ओवर थिंकिंग है, वट एवर इज गोइंग ऑन योर माइंड, दैट कम्स विद दोज नंबर्स. वी कैन डायग्नोज whatever you want about you with those numbers, even your health. So numerology is the best tool to know about yourself, about your health, about your events, and pros and cons of your numbers. तो उस हिसाब से अगर आप थोड़ा सा अवेयर होके चलें तो आगे चल के आप अपनी लाइफ अपनी मर्जी से अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन लीड अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी. दैट्स इट सर. And how you can help people. आपने ये सब न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया. Now, how exactly can you help a client? सब लोग अपना ध्यान से With the सुनना, help- सबके नंबर आएंगे. हाँ, what exactly is your specialty? Okay, if you will if you want to know anything about yourself, about your health, about past events कि आपकी लाइफ में क्या हुआ, क्यों हुआ, कई बार unknown questions होते हैं, तो I'll just seek your date of birth and your full name spelling, and I can analyze and guide you further with the help of numerology.
and whatever you want to know about it, I can give you the remedies also, and I can help you out to design your life the way you want. Perfect. Good. A big applaud for her also. Amazing. अगला नंबर आएगा पिंकू शर्मा जी. हिंदी में बोल दिया तो भी चलेगा. जी सर. आपको मैं स्पॉटलाइट पे करता हूँ. कहाँ गई? हाँ मैडम. यस. आपका टास्क है, आप 4 and 8 कॉम्बिनेशन के बारे में बोलेंगे. BN4 DN8. जी सर. Hello everyone. I'm Tripti Sharma. I'm a neurologist at Tripti Sharma. And कैमरा में देख के बोलिए. सबका डर निकालना है मुझे. जी सर. Number 4 and number 8, Rahu and Saturn. सभी राहु लोग एंड केतु. सैटर्न नहीं. नंबर 8 बोले ना हाँ सर. सॉरी हाँ. राहु एंड सैटर्न. हाँ 4 and 8. सॉरी. राहु एंड शनि, इससे सभी लोग बहुत डर जाते हैं कि ये सबसे खतरनाक होता है. अगर हमारी इसमें है, कोई कह नहीं सकते हैं. अगर नंबर 4 में आपका है, BN है, आपका बर्थ डेट वो है, तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं. बट जो राहु है नंबर 4, उसे वो बहुत फोकस होता है, वो उसे अपनी चीजें परफेक्ट होता है, उसको काम से मतलब होता है, काम होना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए. फिर वो कैसे भी हो, अगर कहीं कुछ भी तिकड़म लगा के कैसे भी करके अगर काम पूरा हो जाए, बस रिजल्ट मिलना चाहिए. तो उसमें कुछ बुराई नहीं है. आज के टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा होना भी जरूरी है. किसी भी काम को पूरा करने के लिए हर तरह का हमें आना चाहिए कि कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए. और रही बात शनि की, तो शनि अपने आप में कभी भी बुरा या खराब नहीं है. हर कोई शनिदेव भगवान को पूछते हैं और करते हैं, लेकिन हाँ, उनके जो अगर है डेस्टिनी में है और वो रहता है, तो वो सिर्फ इस वजह से कि वो काम बहुत करवाते हैं. बहुत जो जिसके भी नंबर 8 से जो भी रूट होते हैं, तो शनि है तो एक तो वो न्याय के देवता है, तो वो हमेशा उस पे रहेंगे कि जस्टिस पे हमें न्याय कर काम चाहिए, लेकिन अच्छे तरीके से चाहिए, सही तरीके से, गलत नहीं करना है. उनका हमेशा मतलब वो रहता है. और 4 का उल्टा रहता है राहु का, तो इस वजह से दोनों में रहता है. यही दैट्स इट सर. हेलो. एक्सेलेंट. थैंक यू सर. बहुत अच्छा. बस जब तक आप बोलोगे नहीं, तब तक मुझे भी नहीं समझेगा ना कि जो मैंने जो भी कोशिश की है वो आपको कितना समझा है. अगला नंबर आएगा अलका जी. कैन यू प्लीज पुट ऑन योर कैमरा. अलका जी आप हैं? मैडम है क्या आप? यस सर, यस सर, यस सर. आप प्लीज कैमरा ऑन कर दीजिए. ओके सर. सर ये ऑन नहीं हो रहा है. ऑन नहीं हो रहा है? यहाँ से कुछ अलाउ का कुछ आ रहा है लिख करके. अलाउ का सर कैमरा ऑन करना जरूरी है. यस सर, हो उसके गया. बगैर लोगों को पता सर, कैसे चलेगा कि कौन सर, हो अपकमिंग गया. न्यूमरोलॉजिस्ट है? वो हो ऑप्शन गया. लिख करके आ रहा है. ओके, नो इशू. अपकमिंग Good evening, all न्यूमरोलॉजिस्ट of कौन है you. पता कैसे चलेगा सर? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. श्योर श्योर श्योर. ओके, आपका टास्क ये है कि आप बताओगे नंबर 18 के बारे में. एंड सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे खुद को एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, एंड देन टुडे यू विल टेल अबाउट नंबर 18. पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए कि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और आपकी खासियत क्या है. इफ यू रिमेम्बर 4th क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि निश ढूंढो, डिवोर्स न्यूमरोलॉजिस्ट. ये न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे डिवोर्स लॉयर हो सकता है तो डिवोर्स न्यूमरोलॉजिस्ट क्यों नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है. जब मैं मेडिकल न्यूमरोलॉजिस्ट के तरह से खुद को प्रेजेंट कर सकता हूँ या कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा, तो आप भी आपका निश ढूंढ सकते हो. आप बता दो आपकी क्या खासियत है.
हिंदी में बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बोलना जरूरी है, बाकी कुछ नहीं, गलत हो सही हो उस पर मत ध्यान दीजिए। ओके सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अलका प्रकाश, मेरा नाम अलका प्रकाश है। और न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में सभी लोग बहुत अभी तक सुनते आ रहे हैं, लेकिन काफी कम लोग हैं जो कि न्यूमरोलॉजी क्या है उसको जानते हैं। क्योंकि सभी समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी का मतलब एस्ट्रोलॉजी होता है, लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगी जिससे आपको लगेगा कि न्यूमरोलॉजी अंकों का खेल होता है। और अंकों के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमारी क्या क्वालिटी होती है और हमारी क्या खामियां होती है। न्यूमरोलॉजिस्ट के थ्रू, अंकों के थ्रू आप ये भी जान सकते हैं कि आपके हेल्थ इश्यूज क्या आ सकते हैं, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और हम उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के सभी इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं या इस तरह की जो चीजें आती हैं उनको सॉल्व करने में मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट। यही ये मेरा मैं इसको सॉरी सर, मैं आराम इसको से, सही मतलब कोई कोई जल्दी नहीं है, बहुत अच्छा हाँ, बोला आपने, रियली उसको मैं अप्रिशिएट। सॉल्व हाँ उसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ और आपको हेल्प कर सकती हूँ आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मेरी ये भी खासियत है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रहे हैं और जिससे आप परेशान हो रहे हो, उसमें मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप किस तरीके से उससे दूर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नंबर 18 के बारे में सभी लोग जानते हैं कि नंबर 18 होता है और उसे 18 नंबर के अंकों के द्वारा ही जानते हैं, बट ये कोई नहीं जानता है कि नंबर 18 में दो चीजें छिपी होती हैं। एक नंबर जो होता है डेट इज सन को रिकमेंड करता है और 8 नंबर जो होता है डेट इज लॉर्ड सनी को रिकमेंड करता है। सन मीन्स सूर्य है, लॉर्ड सनी उनके बेटे हैं, मीन्स दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो कभी भी जब ये दोनों एक साथ रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अच्छा ही देते हैं या कभी खराब देते हैं, दोनों ही की अपनी क्वालिटी होती है। 18 नंबर हम लोगों को बहुत हाइक पे ले जाता है, हमें बहुत अच्छा, हमें नेम देते हैं, फेम देते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हमारा कर्मा अगर अच्छा नहीं होता है तो हम नंबर 18 हमें अप से डाउन तक भी ले जा सकते हैं। ये शनि की खासियत होती है। शनि भगवान से सब, लॉर्ड शनि से सब लोग बहुत डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हमारा कर्मा ठीक है तो लॉर्ड शनि हमें बहुत दे के जाते हैं, लेकिन अगर हमारा कर्मा ठीक नहीं है तो लॉर्ड शनि हमें उसका हमें डाउनफॉल भी कराते हैं। और नंबर 1 जो सन है, वो सन की क्वालिटी होती है कि वो जो हमारे अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है, जैसे कि एज ए सन उगते हुए सूरज का नाम होता है, वैसे ही 1 नंबर के जो इंसान होते हैं वो लाइफ में हमेशा बहुत ही एग्रेशन होता है, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है और वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं अगर वो बहुत ही मेहनत से और अच्छे से जाते हैं। उनकी क्वालिटी होती है कि वो बहुत ही उनकी पर्सनालिटी प्लीजिंग पर्सनालिटी होती है और वो बात करने में बहुत ही माहिर होते हैं। और 1 और 8 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो नंबर 9 होता है, डेट इज मास का नंबर होता है, जो हमें ये बताता है कि हम किसी भी चीज को अगर हम शुरुआत करते हैं तो उसे एंड तक हम जरूर करते हैं, किसी भी काम को हम अधूरा नहीं छोड़ते हैं। इस तरीके से अगर आप किसी भी नंबर्स को देखेंगे तो न केवल उसकी क्वालिटी के बारे में आपको पता चलता है, बल्कि ये भी पता चलता है कि वे आपकी लाइफ को किस तरीके से हेल्प कर सकता है। दैट्स इट सर। परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि इसके पीछे का मकसद ये भी है कि कम से कम आप नॉनस्टॉप 2 से 3 मिनट कहीं ना कहीं बोल सको, because that is important that your client should understand when you are presenting yourself as a numerologist. अगला नंबर आएगा सुनीता जी, यू आर देयर? सुनीता मैडम हैं आप? हेलो सुनीता मैडम। सर हूँ पर बोल नहीं पाऊंगी सर। अच्छा बोल नहीं पा, अच्छा बेटा कैसा है? सर उसी के वजह से ठीक है चलो, कोई पास दिक्कत में ही नहीं, है सर, चलो बट मैं चलो, जरूर बोलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा चलेगा, ठीक है। सर थैंक यू सर। मृदुल तंबराकर जी हैं आप? Yes, मृदुल, sir. I'm here. Yes, कैन sir. यू प्लीज पुट ऑन द कैमरा? Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग। ओके, आपका छोटा सा टास्क है, Yeah. डिवोर्स एंड न्यूमरोलॉजी। Okay.
fine, sir. First, I will introduce myself. Myself, Mridul Tamrekar. I'm a numerologist. और इसको हम अंकों के जादूगर से भी आप इसको समझ सकते हैं. एंड सर इंट्रोड्यूस करवाना है ना पहले एज ए बिल्कुल न्यूमरोलॉजिस्ट. बिल्कुल Yeah. बिल्कुल. यशवंत क्लब में ऐसा समझो कि आप यशवंत क्लब में 100 लोगों के सामने बोल रहे हो, तो यशवंत क्लब आपका ग्राउंड है. चलो बता दो. यस यस ओके. एंड अंकों के जादू से तो हम सभी वाकिफ हैं. हमारी लाइफ में हम हर क्षेत्र में हर जगह हमको नंबर्स मिलते हैं, देखने मिलते हैं और हम उनसे गो थ्रू होते हैं. हमारे जन्म से लेके हमारे होल लाइफ ईच एंड एवरी स्टेज में हमको नंबर्स से ही गो थ्रू होना होता है. और इन नंबर्स का जो गुण रहस्य है वो हम न्यूमरोलॉजिस्ट आपको एक्सप्लेन कर पाते हैं. जो नंबर साधारणतः हमको देखने में 1 2 3 4 दिखते हैं, बट उसके पीछे बहुत म्यूट छुपे होते हैं और उन राज को खोलने का काम हम न्यूमरोलॉजिस्ट करते हैं. तो न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली अ साइंस. एस्ट्रोलॉजी से तो सभी कोई वाकिफ है एंड न्यूमरोलॉजी भी एक बहुत ही अच्छा सटीक सॉल्यूशन है आपके डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स का. और हर क्षेत्र में हम जो नंबर्स को यूज करते हैं उनको हम एनालिसिस करके और प्रॉपर वे में सही तरीके से अपने फेवर में यूज कर सकते हैं. इसी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं किसी फैमिली में किसी हस्बैंड वाइफ की नहीं पट रही है, कुछ फैमिली क्लैशेस हो रहे हैं, कुछ फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर और ये वाली चीजों की तरफ जाते हैं. हम इसके साथ में एक ये चीज भी कर सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ और नेम से उनके सारा उनकी डिटेल्स से हम उनका एनालिसिस करके ये जान सकते हैं कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्या ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो उनके नंबर्स के अकॉर्डिंगली हम उसको हेल्प कर सकते हैं बेटर करने में या फिर उसको एंड रिजल्ट तक ले जाने में. थैंक यू सो मच. ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. या हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आपके पास आते हैं कि Yeah. हमारा तो रिलेशन अभी टूटने के कगार पे है. Yeah. What is that you would analyze in that? Okay. First, I will take the date of birth of husband and wife both Okay. and take the name, and then I will analyze कि क्या वो numbers आपस में friendly हैं या unfriendly हैं और क्या उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका रीजन मैं उसमें से एनालिसिस करके और डेफिनेटली उनके नेम पे भी जाऊंगी और उनके नेम नंबर्स को भी सारा कुछ एनालिसिस करके और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगी कि क्या ये आगे इसमें स्कोप है, क्या ये रिलेशन आगे कंटिन्यू हो पाएगा. इफ यस देन उसके लिए मैं उनको हेल्प करूंगी. इफ नॉट, इट्स नॉट लाइक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली उनको एक कुछ रेमेडीज और कोई सारी चीजें सजेस्ट करके और आफ्टर सम टाइम आई विल जस्ट कॉल देम अगेन कि अगर इनसे कोई फायदा नहीं होता है देन वी विल कंक्लूड दिस. Okay. But then how can you say that this cannot? बिकॉज और कोई भी रेमेडीज अगर हम देते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए हमको कुछ समय देना होता है और उनको 3 to 4 months एटलीस्ट हम इस चीज के लिए देंगे कि आप ये सारी चीजें करिए. और डेफिनेटली अगर आपको इससे फायदा होता है या नहीं होता है वॉट एवर द थिंग, तो ऑलवेज सेकेंड कंसल्टेंसी इज रिक्वायर्ड. Okay. फर्स्ट कीजिए, हस्बैंड 1 नंबर है एंड वाइफ 8 नंबर है. हाउ विल यू सेव द डिवोर्स? 1 और 8 है सर, तो 9 divorce नंबर को बचाना है. लाया जाए. करवाना नहीं है. सर इसके लिए तो मुझे स्टडी करना पड़ेगा, आपकी जितनी रिसर्च नहीं। नहीं. सिंपल भाषा में बताइए कि 1 और Okay. 8 अगर है तो 1 के ट्रेड्स कैसे होंगे
8 के ट्रेड्स कैसे होंगे, आप 1 को क्या समझाओगे, आप 8 को क्या समझाओगे। फाइनली काउंसलिंग आपको दोनों को देनी है। 1 वाला जो है लीडरशिप, परफेक्शनिज्म सब कुछ आता है, Right. तो आप उस हिसाब से बताइए। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। If suppose if अगर नंबर 1 हस्बैंड का नंबर 1 है एंड वाइफ का नंबर 8 है, तो फर्स्ट आई विल से कि एज अकॉर्डिंग टू द नंबर, जो हस्बैंड है उनकी पर्सनालिटी है डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, और वो अपनी बातों को he is reacting like a king of the पैलेस। आपके घर के वो अपने डोमिनेटिंग नेचर होगा, वो ये सारी चीजें रूल करते होंगे। एंड सेकेंडली जो वाइफ है बहुत फेयर होंगी, वो बहुत थोड़ा डेफिनेटली स्लोली वो काम करते होंगे, बट उनका जो भी होगा वो परफेक्शन और 100% सही तरीके से ही काम करना पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पे डिस्प्यूट किसमें होते हैं, एक जो है वो बहुत परफेक्शन और बहुत परफेक्शनिस्ट है और डोमिनेटिंग है बिकॉज ऑफ द सन, एंड द सेकंड वाइफ जो है वो बहुत फेयर है और वो चाहती है कि वो सारा काम फेयर तरीके से ही करो और भले स्लो हो बट 100% अच्छा हो। तो यहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे को समझने की और बैलेंस करने के लिए एक दूसरे को स्पेस देने की जरूरत है। और डेफिनेटली अगर हमको पता है कि सामने वाले की क्या एक्चुअल में फितरत है या वो कैसी पर्सनालिटी को कैरी कर रहा है, और अगर हम उसको अंडरस्टैंड करके और थोड़ा थोड़ा स्पेस दें दोनों साइड से, तो ये चीज कंटिन्यू हो सकती है। एंड नॉट मोर देन सर, इसके बाद तो फिर बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ, अगला नंबर है रांशी जी, रेडी टू स्पीक, बिल्कुल बात कर पाएंगे? ठीक है, आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको बहुत सिंपल काम बताता हूँ। ऐसा अज्यूम कीजिए कि आप विक्टोरिया मेमोरियल के सामने खड़ी है और सामने आपके बहुत सारे आपके क्लाइंट्स हैं, तो आपको बस खुद को इंट्रोड्यूस कराना है, 2 मिनट में इंट्रोड्यूस करा दीजिए, बाकी कुछ मत कीजिए, सिर्फ इंट्रोड्यूस कराइए खुद को। हिंदी में कीजिए, बंगाली में बोलना है बंगाली में कीजिए, थोड़ी बहुत बंगाली तो समझती है। सर हिंदी में कोशिश कर रही हूँ बोलने की, थोड़ा 1-2 वर्ड मिस हो सकता है। गो अहेड, कोई बात नहीं। समझिए कि विक्टोरिया मेमोरियल के सामने आपका चल रहा है, क्राउड है, आपका खुद का क्राउड है, बताइए। सर आप लोग को अननोन समझ के बोल रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते, मैं हूँ देवावती मौलिक। मेरा एक बाई हॉबी आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आप लोग को पता है न्यूमरोलॉजी क्या है? आप लोग को कोई कुछ आइडिया है क्या? नहीं, आप बताइए। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ, आप कभी कभी देखेंगे कि हम लोग की जिंदगी में बहुत सारा नंबर बार बार घूम फिर के आता है हम लोग के लाइफ में, और वो वही जगह कभी एज ए जन्म के टाइम या कभी वो एज ए रोल नंबर, कभी फ्रेंड के, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का वो नंबर्स हम लोग के लाइफ में बार बार आता है। इसका कभी कोई रीजन हम लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? कोई ऐसा कोई ऑब्जर्व किया हो क्या ऐसा होता है या नहीं? तो इसका कुछ रिस्पॉन्स आएगा। तो मैं जो बोलना चाहती हूँ, हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग की लाइफ में हर एक इंसान की लाइफ में कुछ नंबर्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत ज्यादा कुछ नंबर्स इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करती है। तो ये नंबर्स क्या है? तो ये नंबर्स कभी हम लोग को कुछ पॉजिटिव भी दे जाता है, कभी हम लोग को कुछ नेगेटिव भी दे जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ एज ए प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं ये करने की कोशिश करती हूँ कि हम लोग अगर एक पहाड़ पे गए हैं घूमने, तो हम लोग के ऊपर एक बड़ी ये स्टोन पड़ने वाले हैं, तो हम लोग क्या करने की, वो डेस्टिनी
can't change. No one can change destiny except God. But हम लोग सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि वो स्टोन जो बड़ा वाला पढ़ के जो इंसान को बहुत दिन से सफर करना पड़ सकता था, तो किसी तरह उनके वो स्टोन को, मतलब वो बड़ा वाला स्टोन की जगह वो स्टोन शायद थोड़ा छोटा हो जाएगा, जिससे शायद उसका इंटेंसिटी कम हो। तो किसी नेगेटिव चीज का इम्पैक्ट हम लोग कम कर सकते हैं, कुछ ऐसे कुछ काम कर सकते हैं। और फिर जैसे सर यहाँ पे थोड़ा एक मैं बोलना चाहती हूँ, तो मेरा भी एक लाइफ का थोड़ा एक पर्पस भी है जिसके कारण ये पढ़ने है एज ए टीचर। तो मैं जैसा पढ़ी हूँ इतना दिन से, तो मेरा ये हॉबी भी है, तो मैं देखी हूँ हर एक नंबर जो अच्छा भी है तो उनका कुछ नेगेटिव भी है। लेकिन अगर एकदम छोटे बच्चों को अगर हम लोग कुछ, जैसे मैं टीचर बोलूँ तो मेरे पास, अगर अभी मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे पास हर एक टीचर का DOB या नाम रहता है, तो यानी मैं नेम नंबर उनका हर एक ग्रीड, लोशू ग्रीड का उनका स्ट्रेंथ, उनका हर एक कुछ जान सकती हूँ। तो उनका ये जान के मैं जान सकती हूँ उनका क्या पॉजिटिव पॉइंट है, स्ट्रेंथ पॉइंट है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि उनकी स्ट्रेंथ जो पॉइंट्स है उसको वो ज्यादा यूटिलाइज कर सके, और जो नेगेटिव पॉइंट्स है तो मेरा सर बहुत दिन से कुछ केस स्टडी रिसर्च भी कर रही हूँ, तो मेरा खुद का रिसर्च ये भी बोल रहा है कि जी हर एक नेगेटिव जो नंबर्स है, नंबर्स का जो नेगेटिव क्वालिटीज है, वो अगर अच्छी एक एनवायरमेंट, एक अच्छी परवरिश, मतलब जैसे हम लोग सर NLP, मतलब वो जो हम लोग ब्रेन का प्रोग्रामिंग होता है, तो ये नंबर्स को अगर हम लोग छोटी उम्र से किसी को गाइड कर पाएंगे, ये उनका नेगेटिव पॉइंट्स उनके आ सकता है, तो वो उसका हम लोग पहले से अगर उनको मतलब एज ए पेरेंट या टीचर को गाइड करें, तो उस जगह हम लोग वर्क कर सकते हैं कि उसको उस नेगेटिव को कैसे कम कर पाए, उस स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ा के। तो मेरा यही मेन टारगेट है, तो ये करूं, और जिससे कि हर एक बच्चे की जो नंबर्स है, हर एक, क्योंकि 1 to 9 हर एक नंबर बहुत अच्छा नंबर है, अगर वो पॉजिटिवली काम कर पाए तो वो नंबर्स का बेस्ट निकल आए हर एक की लाइफ में, तो शायद फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे सर कोशिश करूँ बोलने की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने तो एस्प्लेनेड के केसी दास के रसगुल्ले से भी ज्यादा मीठा बोला। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। या अब आता है नंबर इंद्रजीत जी का। कहाँ पर इंद्रप्रीत जी? मैडम प्लीज। या सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक सेकंड, हाँ, रिप्लेस स्पॉटलाइट। अब आप स्पॉटलाइट पे आ गई हैं। 5 bad things about numerology. Sir, it's very difficult to say as I am myself a numerologist. So, in fact, then it is important to know that what are the drawbacks and what are the bad things of numerology. And that too, you have to put it in the positive way. Okay. Okay. Good evening to one and all. Myself, Inderpreet Kaur, and I am a numerologist, and I am very proud to be a numerologist. But as we know that every coin has two sides. So this field, this scientific field, is also having the other side. Predictions is not necessary that every prediction come true. जो भी हम assumptions लेके चल रहे हैं numbers को लेकर, numbers के relations को लेकर, वो आने वाले समय में भी उतने ही strong साबित हों. So things keep on changing. तो ये जो एक समय के साथ जो changes होते रहते हैं, वो change यहाँ पर भी आता है न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि numbers जो हैं वो सिर्फ date of birth के numbers ही हम पर काम नहीं करते हैं. ठीक है, हम पर हमारे जोडिक साइन का नंबर भी काम करता है, हम जिस जगह से एसोसिएट हो रहे हैं उस प्लेस का नंबर भी काम करता है, हमारा नेम का नंबर भी बहुत काम करता है. तो इसलिए अगर चेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं तो ये हो सकता है कि हमने आपके BN और DN को देख के कोई प्रिडिक्ट किया, कुछ कहा, आपको बताया कि, और आपको लगा आने वाले समय में कि भाई ये तो सही नहीं हो रहा है,
तो उसके रीजंस दूसरे भी हो सकते हैं, मगर हाँ ऐसा हो जाता है न्यूमरोलॉजी में, मगर उसके साइंटिफिक रीजंस हैं, तो उस पर स्टडी करके हम उसको भी रिजॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं एक और पॉइंट की बात करूं न्यूमरोलॉजी को लेकर, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली हमारे जो कर्मास हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं। नो डाउट होते हैं, मैं खुद इस पर बहुत बिलीव करती हूँ, पर मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे गुड कर्मास ही होते हैं जो हमें ऐसे इंसान से मिला देते हैं, जैसे हम विवेक सर से मिले, कि हमें सही रास्ता दिख जाए, हमें हमारी सॉल्यूशंस को फेस करना, हमारी प्रॉब्लम्स को फेस करने का स्ट्रेंथ मिल पाए, या हमें सही नॉलेज मिल पाए, एटलीस्ट हम वो इंसाइट डेवलप कर पाए जिससे हम उन प्रॉब्लम्स को समझ सके। तो इसमें न्यूमरोलॉजी हमें बहुत हेल्प करती है। जब हम अपनी केस स्टडीज करते हैं और हम देखते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स को, और हम देखते हैं कैसे नंबर्स काम करते हैं जादुई तरीके से हमारे ऊपर, तो वो हमें बहुत हद तक सिखाते हैं कि हम कैसे सिचुएशन से लड़ सकते हैं, बिहेवियर हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं नेगेटिव चीजों की न्यूमरोलॉजी को लेकर, तो एज सच एक जर्नल सी है नेगेटिविटी, मगर वो नेगेटिविटी नहीं है, वो एक अनसर्टेनिटी है जो हमारी लाइफ के साथ ही जुड़ी हुई होती है। लेकिन न्यूमरोलॉजी हमें हमेशा हर अनसर्टेनिटी से भी लड़ने के लिए हेल्पफुल होती है, एंड दैट्स व्हाई आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट। थैंक यू। Very good. You should start your YouTube channel. Very honestly. सर मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आई नो दैट आई कैन स्पीक वेरी वेल, मगर मुझे सर ऐसे लगता है जब भी कुछ सीखती हूँ मुझे लगता है कि अभी कुछ कमी है। लेट मी लर्न मोर। पर ये मैंने अभी आपसे सीखा कि हमें शुरू कर देना चाहिए, तभी और ज्यादा सीख पाएंगे। पता नहीं क्यों सर ये मेरे में है, शायद मेरे नंबर्स में कि मुझे अगले 3 लेक्चर्स में आपका हर एक का YouTube चैनल चालू हो जाएगा, ये बात की मैं गारंटी देता हूँ। अगले 3 लेक्चर्स में होगा, एंड वी विल बी डूइंग इट लाइव। सबका होगा। बाकी आप उसको कैसे खुद बढ़ाते हो, दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सिंपल ये होता है कि वंस यू गिव अ बर्थ टू योर बेबी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ यू हैंडल इट। सर मेरी क्वेरी है। हाँ जी सर, हमने अभी तक पोस्टमार्टम ऑफ द केसेस किया, सर हमें थोड़ा सा इस पर भी वर्क कराइए कि हम प्रिडिक्शन पार्ट पे भी थोड़ा सा जा सकें। आ जाएगा 3 लेक्चर्स बाद आएगा, आई मीन जस्ट आई जस्ट वांटेड, डोंट वरी, आएगा। क्योंकि सर लोग ना लाइक अभी हम जिससे, अगर मैं किसी से कांटेक्ट करती हूँ या मैं किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, तो आपको भी मालूम है सर, लोग मोस्टली वही जान, ऐसा होगा मेरे साथ, ऐसा कैसे होगा, कब होगा। तो ये प्रिडिक्शंस में लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, रेमेडीज में ज्यादा होता है। आप उनको जितना मर्जी काउंसल करने की कोशिश करो, we'll be doing that, but वहां पे मेरा मानना ये होता है हमेशा that whenever you are giving a prediction to someone, tell them that there is a possibility of happening this. You can't predict anyone's future anytime at any cost. There is always a possibility. We are not Very God. true, sir. Agreed. We are not God. यस सर। तो जब भी क्लाइंट बोलता है कि नहीं मेरी शादी इस साल होगी क्या, एक स्टैंडर्ड रिप्लाई बता के रखता हूँ आपको, जो कभी फेल नहीं जाएगा। High chances. हाँ, very high chances. It Very high depends chances. upon you Yes. that whether you accept the proposal or not. कभी आपका ये prediction फेल नहीं जाएगा। 100%. वेरी नाइस। Very कोई इसके smart. लिए ना नहीं बोलेगा। And see, it is a positive prediction because बहुत बार ऐसा होता है कि आपके चार्ट में योग होते हैं या आपका नंबर्स में योग होते हैं, but then things don't happen because of the person's own nature. वो खुद ही कंफ्यूज स्टेट में होता है। तो अभी हम और आपने अगला ग्रैब जाते नहीं हैं, की सर उसको। अभी हम जाते हैं डायरेक्टली Opportunity. आउट, इंडिया से बाहर जाते हैं डायरेक्टली कनाडा में, एंड कनाडा से अपने साथ जुड़ेंगे भूमिका मैडम। हाँ मैडम, आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन ये है, हेल्थ एंड न्यूमरोलॉजी। आराम से बोलिए, चिंता नहीं है, बहुत आराम से बोलिए। Okay. Do I introduce myself first? Absolutely. We'll be very happy to know a numerologist from Canada. Okay, I'm gonna try because I'm the least experienced here. So. Even I am the least experienced person. जब मैंने शुरू किया था ना, तो 45 टाइम्स रीटेक किया था,
और वो भी मैंने किस तरह से प्रैक्टिस किया ये भी बताता हूँ, लाइक बिफोर यू टेल। मैंने अपने सामने खड़े रह के घर के जितने तकिए थे सब सामने रखे थे, कैमरा ऑन किया था मोबाइल का, एंड आई डिड 45 रीटेक्स बिफोर आई वेंट लाइव फर्स्ट टाइम इन 2017, जहाँ हेल्थ टॉक्स का मेरा एक 1.5 घंटे का वेबिनार था, मुंबई जाके देना था, तो वो होने से पहले घर पे 45 रीटेक्स लिए थे। सो डोंट वरी, इट इज ऑल योर्स, एंड हम सब लोग एक ही फैमिली के हैं। तो सर हमें टिप्स लेना होगा सर आपसे, सर कुछ अरे कैमरा के सामने आप कैसे। ऑलरेडी इतने नहीं सर, आप बाकी आपका यूट्यूब चैनल्स वगैरह है ना, तो आप अच्छा से कर रहे हो। हम लोग यूट्यूब चैनल तो करने वाले हैं सब। डेफिनेटली हमें इन चीजों पे काम करना है, और आपसे कुछ मैं टिप्स मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि इस वर्कशॉप में न्यूमरोलॉजी के we will be putting everyone as a brand so that you are able to stand up for yourself. So Romika ji, please start. Hello, everyone. I'd like to introduce myself. My name is Romika Kapoor. I'm a numerologist. I'd like to begin by talking a little bit about what numerology is. Numerology is a very special science of numbers and their relationships in our life. Each number has a vibration, and each number is connected to a different planet. Each planet represents different attributes, qualities, and also different parts and organs in our body. Now, as we all always hear, everything in the universe is connected. So numerology is a science which we can look at as a holistic science, which is connected to everything all around us. And we see the play of numbers in our lives all the time. We have a date of birth, we have a year of birth, we have a month of birth. There's specific events in our life which are on certain dates again. So everything is all about numbers. It's a numbers game. And numerology can benefit us in many, many different ways, and many different aspects of our life can be benefited by numerology. One area where a lot of people struggle is health. And how can numerology help this? So as I said before, each number has a vibration, and each number is also connected to different planets, which also have their own vibrations. They also deal with different aspects of our life and of our body. Now, each dis-ease or ailment has its own number as well. So that again has a vibration. So now when we can look at our own numbers, and when we can look at the numbers of these different diseases or health issues, or different areas of our body that are going through some sort of discomfort, we can make a relationship between the two things. Now, when we can actually make a relationship, we're able to heal that. And this is where I come in as a numerologist, because what I would do is I would look at your numbers. I would look at the whole picture. I would look at, what in your health needs to be healed. And a lot of the time we see that there's certain diseases or certain issues that we have that are not even able to be diagnosed. And I feel that this is where numerology can really help us, because when we start to look at our numerology, we look at our numbers, and then we look at what we're going through, what in our body is being affected. It could be the ears, or it could be your legs, whatever it might be. So we build this correlation between the numbers and what's actually happening in our lives, and how we can actually fix that. So through numerology, we can help our lives. And this is where I could help you to get to know yourself a bit better, to get you to know, to help you get to know your body better, and to bring healing and balance into your life, and help you create a better life, and also overcome hopefully some issues, and
even avoid certain issues in the future. Thank you. बहुत अच्छा, Very nice. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोला। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आएंगे आंचल मैडम। आंचल मैडम, you are there? All the way from Dehradun, right? No, sir. I'm Lucknow. from Lucknow. Lucknow, yes. So आप बोलेंगे business and numerology. Business. Okay. Hello, everyone. I'm Anchal, numerologist. नंबर्स वो हैं जो जब हम पैदा होते हैं तब से शुरू होते हैं हमारी लाइफ में, और जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक वो हमारी लाइफ में हमारे साथ रहते हैं। बर्थ नंबर को हम लोग बदल नहीं सकते, अगर वो हमारे एंटी हैं आपस में BN-DN, या फिर जिस दिन हम जाने वाले हैं डेस्टिनी नंबर को भी नहीं हम बदल सकते। बट जो हमारे साथ नंबर्स चल रहे हैं, हमारे नेम नंबर, हमारा फोन नंबर, हमारे बिजनेस से रिलेटेड नंबर्स, वो हमारे साथ हमें कितना लक दे रहे हैं उनको हम जरूर बदल सकते हैं। अपने BN-DN के साथ एनालाइज करके हम अपने लकी नंबर्स को हम अपने बिजनेस में लेकर आ सकते हैं, जो कि हमारे को बिजनेस को कितना सूटेबल है नंबर्स। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस को सूट करते हैं, उन नंबर्स पे हम अपना बिजनेस का फर्म नेम रख सकते हैं, जो कि हमें ज्यादा से ज्यादा लक देगा और हमारे बिजनेस को अच्छा चलाएगा। और कुछ? You have done excellent, no doubt. Extempo is always perfectly fine. बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। Yes. अब हम आते हैं विदेश जी। जी सर। जी सर, लोग हमारा नंबर सर कल आएगा। आप चिंता मत कीजिए, हम लोगों का खत्म करके ही करेंगे आज। ओके ओके। विदेश जी कहाँ है आप? हाँ जी सर। अच्छा, दिखाई नहीं दिया साथ आपको यहाँ? सर आपके साथ दिखाई नहीं दिया। हाँ, अभी देखें सर। थैंक यू। आप बोलेंगे stress and how numerology can help in stress release. Stress release. Hello everyone, I am Hridesh Astru, a student of numerology. मैं न्यूमरोलॉजी सीख रहा हूँ और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि आप जब तक मर्जी सीख लो आप स्टूडेंट ही रहेंगे। न्यूमरोलॉजी, जिसको हिंदी में अंक शास्त्र भी बोलते हैं, एक ज्योतिष शास्त्र की एक ब्रांच है। जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामेस्ट्री, फेस रीडिंग या रेकी, ऐसे ही एक अंक शास्त्र, ये भी न्यूमरोलॉजी की एक ब्रांच है, जिससे कि हम अपने हैबिट्स के बारे में, अपनी डेस्टिनी के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, इवन अपनी बिजनेस के बारे में और सब चीज़ों के बारे में हम लोग जान पाते हैं। न्यूमरोलॉजी जो है 1 to 9 नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन है, जो कि 9 प्लैनेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। हर नंबर को अपना एक प्लैनेट रूल करता है और हर प्लैनेट को एक ज़ोडिएक साइन जो है वो हर प्लैनेट का एक अपना एक ज़ोडिएक साइन है। नंबर्स जो हैं 1 to 9 चलते हैं और नंबर्स का जो रोल है, जब से ये हम कह सकते हैं, जब से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से नंबर्स हमारे साथ हैं। और ये नंबर्स जो हैं एक इंसान के जन्म से लेकर और उसके एंड टाइम तक उसके साथ चलते हैं। वो चाहे उसका बाथ नंबर हो, चाहे डेस्टिनी नंबर हो, ज़ोडिएक नंबर हो, उसके फैमिली मेंबर्स हों, फैमिली मेंबर्स के नंबर्स हों, बच्चे हों, कितने बच्चे हैं उनके, कितनी उसकी फैमिली मेंबर्स हैं, किस घर में वो रहता है उस घर का क्या नंबर है, जो वो गाड़ी यूज़ करते हैं उसका क्या नंबर है, और जो मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं उसका क्या नंबर है। जिंदगी का हर एक स्टेप
नंबर्स के साथ है। नंबर्स के बिना अगर हम ये कहने जाएं कि नंबर्स के बिना लाइफ है, नंबर्स के बिना लाइफ नहीं है। तो और स्ट्रेस, एक इंसान स्ट्रेस के लिए जो है न्यूमरोलॉजी के कुछ नंबर्स जो हैं न्यूमरोलॉजी के वो डिनोट करते हैं स्ट्रेस के लिए। अगर आप कि किसी भी नंबर की क्वांटिटी आपके नंबर्स की मतलब आपके बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, ज़ोडिएक नंबर और डेट ऑफ बर्थ में अगर कि कोई भी नंबर आपके एक लिमिट से ज्यादा है, दैट इज अ स्ट्रेस फॉर यू। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव मल्टीपल्स ऑफ 2 नंबर्स, आपके अंदर जो क्वालिटी है उसके अंदर आपके अंदर फीमेल क्वालिटीज ज्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। आप अपने आप को जो है ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। आपको ये पसंद होगा कि आप एकांत में रहें। कोई भी आदमी आपको, कोई भी इंसान आपको आसानी से हर्ट कर सकता है। जब आप हर्ट होंगे then you will be alone, and if the numbers are more, 2 number is more, आपके अंदर जो है आपके अंदर मूड स्विंग्स होंगे। मूड स्विंग्स होने के कारण आप एकांत पसंद करेंगे। एकांत, जब आप इंसान अकेलेपन में होता है तो उसका दिमाग जो है वो नेगेटिविटी की तरफ भागता है और वो उसको कुछ गलत करने के लिए उकसाता है। अगर उसके साथ उसको 4 नंबर का इफेक्ट हो या 7 नंबर का इफेक्ट हो तो वो डेफिनेटली जो है कुछ ना कुछ गलत कर जाएगा। सो जो न्यूमरोलॉजी है इन सब चीज़ों में हेल्प करती है, इन सब चीज़ों से बाहर निकालने में हेल्प करती है और एक इंसान को एक सुटेबल लाइफ जीने के लिए हेल्प करती है। एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, सो मेनी पीपल्स आर डूइंग सच थिंग्स। न्यूमरोलॉजी की भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे कुछ मेडिकल है, कुछ लव रिलेशनशिप्स है, कुछ रिलेशनशिप्स है, कुछ वो है, और कुछ जर्नल न्यूमरोलॉजिस्ट है हमारी तरह, जो कि हर बीमारी का इलाज करते हैं पर स्पेशलिस्ट नहीं है। दैट्स इट। वेरी गुड, थैंक यू सर। बोलना इम्पोर्टेंट है, आप बहुत अच्छा बोले। अब हम आते हैं अपने टैलेंट स्टार रतुल कुमार जी पर। ओहो, हेलो सर। हेलो रतुल। हाँ, हाय सर। आपके लिए टॉपिक है न्यूमरोलॉजी एंड फैशन। इतना अच्छा येलो शर्ट पहन के, येलो जैकेट पहन के बैठे हैं, तो न्यूमरोलॉजी एंड लकी कलर है ना सर मेरा? हाँ हाँ, लकी कलर है मेरा सर। वो न्यूमरोलॉजी एंड फैशन। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। बेसिकली माय नेम इज रतुल एस कुमार। आई एम ए प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आई एम इनटू दिस फील्ड सिंस लास्ट 7-8 years। और मेरे मैक्सिमम जो भी क्लाइंट्स हैं वो इंडिया, नेशनल, इंटरनेशनल से काफी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं अगर देखा जाए तो, और काफी लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो न्यूमरोलॉजी में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी एक ऑकल्ट साइंस का एक पार्ट है। लाइक एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट बेस्ड साइंस है, न्यूमरोलॉजी नंबर्स बेस्ड साइंस। जैसे अगर पूरी लाइफ देखा जाए, कोई भी इंसान जो है पूरी लाइफ नंबर्स से घिरा हुआ है। लाइक जब से वो जन्म लेता है तो उसका कोई डेट ऑफ बर्थ होता है जो चेंज नहीं होता है, ठीक है। फिर उसमें बीएन होता है, डीएन होता है, बीएन डीएन ज़ोडिएक नंबर्स। फिर उसका नेम होता है, जो नेम में जो पर्टिकुलर लेटर्स होते हैं उसको भी नंबर्स असाइन किया गया। फिर आपका फिर बैंक अकाउंट टोटल, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, मोबाइल नंबर, योर हाउस नंबर, देन डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग चीजें हैं वहां पे नंबर्स उसको रूल करते हैं, ठीक है। तो लाइफ में मैक्सिमम इश्यूज जो आते हैं ना, जब आपके बीएन डीएन ज़ोडिएक मतलब आपके कोर नंबर से, डेट ऑफ बर्थ के कोर नंबर से आपका नेम नंबर इम्बैलेंस्ड होगा, तो लाइफ में मैक्सिमम टाइम देखे गए हेल्थ इश्यूज, मैरिटल ब्लिस नहीं मिलेगी, करियर ग्रोथ नहीं होगा, इन चीजों का काफी मतलब इश्यूज आते हैं। और उसको अगर हम लोग बैलेंस कर देते हैं, लाइक एलिमेंट्स एंड नेम नंबर्स, कोर को अगर हमने बैलेंस कर लिया तो उनके लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ देखा जा सकता है। बिल्कुल। और सर व्हाट वाज योर क्वेश्चन? फैशन। हाँ, फैशन स्पेशली फैशन के लिए। हाँ, न्यूमरोलॉजी
देखो हम लोग तो काफी टाइम से इसको देर से जाने, मैक्सिमम स्टार सेलिब्रिटीज जो है वो न्यूमरोलॉजी को बहुत पहले से यूज कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सक्सेस पाई है। बहुत सारे मूवीज के नेम में आपने देखा होगा, काफी नंबर्स लेटर्स, काफी उसमें चेंजेस देखा होगा। बहुत स्टार्स के इवन बहुत लोग जो है पहले से चेंज करवा के न्यूमरोलॉजिकली नेम करेक्ट करवा के इंटर करते हैं अच्छा ग्रोथ सक्सेस पाने के लिए। तो इसमें कुछ नंबर्स हैं लाइक जो पार्टिकुलरली हमें फैशन इंडस्ट्रीज, बॉलीवुड, हॉलीवुड, इन चीजों में काफी हेल्प करते हैं। लाइक 4, 6, 7, 2 इनका इन्फ्लुएंस काफी है। और कहीं से भी आपका अगर इसमें 50% भी आ रहा है, चाहे नेम से हो जाए चाहे BN DN, कहीं से अगर इन चारों में 2-3 मैक्सिमम आ रहा है या फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट है, तो डेफिनेटली उनको उन चीजों में वो लोग एक्सेल कर जाएंगे। मतलब मेरा ऐसा मानना है सर। आपका बिल्कुल सही है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। एक्सीलेंट, थैंक्स अ लॉट, एक्सीलेंट। सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। सरप्राइज फॉर एवरीवन। सर आपने सरप्राइज दिया हमें और हम लोग एक्चुअली तैयार नहीं थे इस चीज के लिए, सरप्राइज टेस्ट जैसा हुआ ये सरप्राइज टेस्ट था। ये सरप्राइज टेस्ट तो आपका बिल्कुल, नहीं thank था, you so much. सरप्राइज टेस्ट मेरा था कि मैं पास हुआ या फेल हुआ। तो अभी आप लोग मुझे बताओ कि मैं पास हुआ या फेल हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल पास हुए सर। पास हुए सर। सर आप डिस्टिंक्शन होल्डर है। तो वो कॉलेज के पर्चियों पे कुछ मैटर नहीं करता है, लाइफ में बहुत मैटर करता है। बट आई एम रियली हैप्पी टुडे कि एवरीवन स्पोक वेल एंड अगर आप इसी तरह से करोगे तो यू कैन स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड वेरी इजीली, क्योंकि फ्लुएंसी सबके पास है, कंटेंट सबने अच्छा समझ के लिया है, इस बात की मुझे ज्यादा खुशी है। व्हाट आई वाज ऑब्जर्विंग एवरीवन वाज कि कंटेंट कितना समझ के लिया है, कंटेंट सबने बहुत अच्छा समझ के लिया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू कि आपने ध्यान दे के कंटेंट समझा है, बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड द कंटेंट यू कैन स्पीक एनी टाइम। बट अगर कंटेंट क्लास में टाइम पास किया है बैठ के तो वो आज पता चलता था कि किसने टाइम पास किया, बट आप सब लोगों ने ऑनेस्टली किया है, ये पता चलता है। सो रियली दिल से थैंक यू सबके लिए। And thanks a lot sir, next thank you week so much. we'll be completely focusing on your social branding, so be ready for that. उसके लिए आपको अगर लैपटॉप है तो प्लीज लैपटॉप भी साथ में रखिए। उस पे आपको जूम में लॉगिन नहीं करना है, जूम पे में भी आप मोबाइल पे लॉगिन कीजिए, बट लैपटॉप पे खुद का पेज बनाना। अब वो पेज का नाम भी हम वहीं पे डिसाइड करेंगे कि कौन से नाम पे वो पेज हिट होना चाहिए, सो दैट बाकी देखो बच्चा सब लोग पैदा करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, तो उसको बढ़ाना कैसा है वो भी बता दूंगा, बट यू हैव टू पुट एफर्ट्स आफ्टर दैट। क्योंकि आज सबने अच्छा बोला एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीवन दैट यू विल बी एबल टू डू इट। क्योंकि आपका खुद का नाम ही आपका खुद का ब्रांड बन सकता है इफ यू पुट इट इन द राइट वे। तो यू कैन रिप्रेजेंट योर सिटी ऑलवेज कि हाँ मुझे न्यूमरोलॉजी आती है। एंड आगे चल के मुझे भी खुशी होगी अगर कोई कहता है कि हाँ हमने कभी विवेक सर से सीखा था 15-20 साल पहले, तो थोड़ा बहुत आगे काम आ रहा है। तो हम दिल से सबके लिए शुक्रिया। टुडेज डेट वाज आल्सो गुड, 6 and 5 का कॉम्बिनेशन था, तो इट वर्कड वेल फॉर एवरी वन ऑफ यू। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आज कोई होमवर्क नहीं है। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स एवरीवन। आज आपका जो 108 सैंपल्स थे उसी को रिविजिट कीजिए, ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट बेस्ट कैन बी डन इन दैट। ठीक है, श्योर श्योर। थैंक यू जी। Merry गुड नाइट Christmas to everyone. हैप्पी क्रिसमस, मैरी Same to you guys, same to you guys. Advance Happy New Year.